गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। Hello everyone, welcoming you all on today's online session for accountancy chapter number 4, that is journal. Before coming to the chapter, I'll revise chapter number 2, some rules of accounts, the golden rules of accounts. As you have seen over there are 3 types of accounts: personal accounts, real accounts and nominal accounts. Personal accounts, the rules were debit the receiver, credit the giver. Nominal account, real accounts, the rules were debit what comes in, credit what goes out. And nominal account, the rules were debit the expense and loss, credit the incomes and gains. Based on that only we will be preparing the journal. Okay. Journal, what do you mean by journal? Okay. Meaning of journal, it is a book of recording. Okay. It is the first book, the fundamental book as we can see. Okay. It is the first book of accounting based on the rules of debit and credit. Okay. A recording process. A recording process of accounting transactions. Process of accounting transactions. A recording process of accounting transactions based on rules of debit and credit. A recording process of accounting transactions based on the rules of debit and credit in the first book of accounts. In the first book of accounts is known as journal. Okay, the book in which the transactions are recorded is known as journal book. जिस बुक में ट्रांजेक्शन की इंफॉर्मेशन हमें दी जाती है, that is called as journal book. It is a fundamental, basic and prime books of accounting based on the vouchers on daily basis. Based on the vouchers, we used to write the entries. Okay, in the journal. Based on the vouchers, we used to write the entries in the journal. We have already seen how to record the entries in the journal. Okay. First, we got to give the heading, journal entry in the books of so and so. For the month-wise, we used to record the entries. For the month of supposedly January 2019. Okay, then date, particulars, LF, ledger folio. Then debit rupees and credit rupees. Okay. The transactions now, you are very much able to classify the transactions, which account will be debited and which account will be credited. You already know how to pass the effects. We have already seen that. How to make the entries and how to pass the effect, how to record it. Okay. So now I will
record the entries, okay, without the columns. You got to pass the entries in the column itself. Okay, I'll roughly make the column. You got to prepare the column with scale and pencil. Okay, so the columns as such, date, then it is particulars, then it is LF, that's ledger folio, then debit rupees, and then credit rupees. Okay. Simple entries we have already seen, some of the simple entries. Okay, we have already seen that. Even I have given you the homework for that, for simple entries. Now we will see the combined entries. What do you mean by combined entries? Okay. Supposedly, in the particular day itself, we are doing more than one transaction. Suppose purchase goods of rupees 5,000 in cash. Purchase goods of rupees 5,000 in cash. Paid salary of rupees 4,000 in cash. Paid salary of rupees 4,000 in cash. Purchase furniture of rupees 3,000 in cash. पहले हमने क्या किया? गुड्स परचेस किया 5,000 का कैश में, सैलरी पे की 4,000 की कैश में, फर्नीचर परचेस किया 3,000 का कैश में. अब सबकी अगर अलग अलग आप एंट्री पास करें, यू कैन सी पहले की एंट्री आएगी परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश 5,000. देन मैं एंट्री पास करके दिखाता हूं. पहले की आप एंट्री पास कर दिया अगर परचेस अकाउंट डेबिट 5,000 टू कैश अकाउंट 5,000. ऐसे लिखना कंपल्सरी है, पता है कैसे लिखना होता है? एक्सक्यूज मी. परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बीइंग गुड्स परचेस्ड. ओके, उसी सेम डेट पे सपोज हमने किया था सैलरी पे की थी. सैलरी अकाउंट डेबिट टू परचेस, ओके, 4,000 बीइंग सैलरी पेड इन कैश. उसके बाद सेम डेट पे आपने किया था फर्नीचर परचेस किया था. फर्नीचर कब से? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. तो तीन एंट्री में अलग अलग भी पास कर सकता हूं या उसकी मैं कंबाइन करता हूं. एज आई कैन सी कैश कैश कैश, सॉरी सैलरी टू कैश. एज आई कैन सी कैश कैश कैश. ओके, तीनों के क्रेडिट में कैश अवेलेबल. तो मैं इसे कंबाइन कर दूं तो मेरी एंट्री क्या बनेगी? परचेस अकाउंट डेबिट 5,000, सैलरी अकाउंट डेबिट 4,000, फर्नीचर अकाउंट डेबिट 3,000, टू कैश अकाउंट 5, 9, 12,000. Being goods purchased, salary paid and furniture purchased in cash. तो हम इसको बोलते हैं combined entry. This we call it as combined entry. Okay, so we'll be learning about the combined entry. Simple entries we have already seen. Okay, then after this combined entry we will be learning about the trade discounts and cash discount कब देना है और कब नहीं देना. So slowly, gradually, step by step, we'll be learning. Whatever homeworks I am giving it to you, kindly got to solve it out and send me upon proper time. 5 to 6 is your time for giving calls if you have any doubts, and 6 to 7 you have to compulsorily send me the homeworks according to the roll number groups, whatever is allotted to you. Okay. So based on the accounting rules, golden rules of accounting, you have to think about and you got to pass the entries. Okay, this is the main book of accounts. After this only, the next step will be for ledger. Okay, individually we are making the books for individual accounts, that is for ledger. Then from the ledger, we used to prepare the trial balance, and then afterwards, as the trial balance got tallied, okay, then we go for annual accounts in the month of March. So, it is the first primary, basic, fundamental books of accountancy
which you have to learn it very properly. ये आएगा तो आपका अकाउंट्स और इजी हो जाएगा. Not only I am talking about 11th standard, I am talking about accountancy. For the entire life of accountancy, you have to compulsorily know to pass the entries. Each and everywhere in accountancy, you must be knowing to pass the respective entries. So better start practicing the sums, solve the sums again and again. Try to understand the transactions which is given. What the transactions need to narrate, क्या बताना चाहता है वो आप समझे और बेस्ड ऑन दैट फिर इसकी एंट्री पास करें. ओके, थैंक्स फॉर द कोऑपरेशन एंड सपोर्ट. स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग. कंटिन्यू वाचिंग द वीडियो टिल द एंड. थैंक्स अगेन. Continuing with illustration number 12, date 16. Goods written by Nirali sent to Kruti. निराली ने मुझे यहाँ पे 13 डेट को गुड्स वापस किया था 650 रुपीज़ का. वो गुड्स मैंने कृति को वापस कर दिया. लेट अस सी कृति से मैंने निराली को मैंने कितने रुपए के प्रॉफिट में सेल किया था. ऑन डेट 9 आई कैन सी 15,000 का गुड्स मैंने 20% प्रॉफिट मैं निराली को सेल किया था 10% पर डिस्काउंट में. ओके, ये गुड्स उसने मुझे वापस किया. इसमें से 650 का गुड्स वापस किया. तो जो मैंने प्रॉफिट में सेल किया था निराली को, उसकी रिटर्न किए हुए गुड्स में से प्रॉफिट का अमाउंट निकालूंगा. निकाल के फिर मैं कृति को उसके गुड्स वापस करूंगा. तो सपोजली मेरे गुड्स यहाँ पे थे 100 रुपये के. उसमें मैंने 20% प्रॉफिट ऐड किया तो 120 रुपये हो गए. उसका 10% ट्वेंटी का माइनस किया, मतलब 12 रुपये माइनस किया तो 108 हो गए. तो 108 इज इक्वल टू 650. तो 100 इक्वल टू कितना? 108 इक्वल टू 650. तो 100 इक्वल टू कितना? तो आई थिंक सो 650 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 108 करोगे तो आपका आंसर को 601.85 या समथिंग आएगा. तो यू कैन से इट इज 602. तो 602 रुपये के गुड्स मैंने वापस यहाँ पे किए हैं कृति को. तो कृति से मैंने परचेस किया था, अब उसको मैंने वापस किया तो हो गया मेरा परचेस रिटर्न. तो कृति अकाउंट डेबिट 602 टू परचेस रिटर्न 602. लेट अस सी व्हाट इज द आंसर. नंबर 16, कृति अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न 602. ओके. Date 17, a machine purchased for 7,000 and paid rupees 500 cash for installing of the machine. मतलब मेरा मशीन कितने का हो गया? अब 7,500 का हो गया. मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. ओके, 7,500 रुपीज. मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 7,500 रुपीज. लेट अस चेक द आंसर. मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 7,500. ओके. नंबर 18, goods are rupees 300 received as free samples, means non-economic. Okay. After deducting rupees 100 discount, check issued to Royal Traders as final settlement. अब देखो इसका कैसे करने का. रॉयल ट्रेडर्स को मुझे यहाँ पे अमाउंट पे करना था, ठीक है. 100 रुपये माइनस करने के बाद मैं रिमेनिंग अमाउंट पे किया. तो ट्रांजेक्शन में तो चेक करने का रॉयल ट्रेडर्स कहाँ है. रॉयल ट्रेडर्स ये रहा. क्रेडिट में है 30,000. उसके बाद डेबिट में है 500. ओके, और कहीं पे था क्या रॉयल ट्रेडर्स? तीसरा यहाँ पे दिया है 500 डेबिट पे, मतलब 29,500 क्रेडिट. उसके बाद 29,500 क्रेडिट आ गया, ठीक है. अब रॉयल ट्रेडर्स को मैंने पे किया तो 30,000 का मैंने गुड्स परचेस किया था. उसके बाद से उसमें से मैंने 500 गुड्स को वापस कर दिए थे. तो 29,500 पेमेंट करना बाकी. 100 रुपये कम करके मैंने 29,400 का पेमेंट किया विद द हेल्प ऑफ चेक. तो रॉयल स्टोर्स अकाउंट डेबिट वो अब रिसीवर हो गया. तो रॉयल स्टोर्स अकाउंट डेबिट 29,500 टू बैंक अकाउंट 29,400 और टू डिस्काउंट अकाउंट 100 रुपीज़. आई होप से समझ में आ गया. अगर सेटलमेंट करना हो तो चेक करना डेबिट क्रेडिट कितना करके. ओके, अगर क्रेडिट में अमाउंट ज़्यादा आ गया अब उसको डेबिट कर दो. रॉयल ट्रेडर्स को मुझे पेमेंट करना था तो इसका नेट हिसाब मिल गया. 30,000 का मैंने परचेस किया था, 500 के मैंने गुड्स उसको वापस किए तो 29,500 का पेमेंट बनता है उसका. ओके, 100 रुपये मैंने डिडक्ट कर दिया डिस्काउंट. ओके, तो 29,400 का मैंने पेमेंट किया वाया चेक. ओके, तो रॉयल ट्रेडर्स अकाउंट या रॉयल स्टोर्स अकाउंट डेबिट 29,500 टू बैंक अकाउंट 29,400 टू डिस्काउंट या यू कैन से अलाउंस 100 रुपीज़. नेक्स्ट नंबर 20, निराली डिडक्टेड अलाउंस ऑफ 50 एंड सेटल द अकाउंट. निराली ने भी अपना अकाउंट सेटल कर दिया 50 रुपये काटने के बाद, मतलब निराली ने मुझे पेमेंट किया होगा. लेट अस चेक निराली कहाँ है.
निराली, ये रहा, निराली का 8100 पेमेंट बाकी था। ओके, उसमें से उसने गुड्स वापस किया मुझे 650 रुपये का, तो 8100 माइनस 650, ठीक है, तो कुछ 8450 का अमाउंट बनता है। उसमें से उसने मुझे 50 रुपये काट दिए। 50 रुपये काटने के बाद 8400 का पेमेंट किया होगा उसने मुझे यहाँ पे 7450, उसमें से 50 रुपये काट दिए। ओके, तो 7400 का पेमेंट उसने किया। सो कैश अकाउंट डेबिट 7400, मुझे कैश मिला 7400, डिस्काउंट या यू कैन से अलाउंस देना पड़ा उसको मुझे 50 रुपीज़, 50 रुपये कम दिए उसने मुझे यहाँ पे, टू निराली अकाउंट 7450। 21st, on account Bhomik paid cash 5000 and issued check for remaining balance and shuttered the account। भौमिक का भी चेक कर लेते हैं, 5000 कैश दिया, बाकी का चेक दिया। भौमिक को ढूंढ लेते हैं, भौमिक कितने का है। भौमिक कब था, ये रहा भौमिक, 23400 का भौमिक था। उसमें से और कहीं पे है भौमिक, किया उसने मुझे पेमेंट किया था 11700 का, तो 11700 बाकी थे उसके यहाँ पे। गुड्स कुछ वापस किए भौमिक को मैंने, नहीं 11700 का बाकी था पेमेंट। ओके, तो अब उसने मुझे पेमेंट कर दिया। 5000 कैश दिए, तो कैश अकाउंट डेबिट 5000, बाकी का चेक दिया, मतलब 6700 का चेक दिया टू भौमिक अकाउंट 11700। 22, गुड्स ऑफ इज 4000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर। इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम पास किया 3000 रुपीज़ का, 2000 रुपये मुझे मिल गया उसको गुड्स को सेल करने के बाद, मतलब मुझे लॉस हुआ 800 रुपये का। सो लॉस बाय फायर 800 रुपये, कैश अकाउंट 200 रुपये, इंश्योरेंस कंपनी 3000, टू परचेज 4000, गुड्स गए तो लिखते हैं हम लोग परचेज। अब तो आई होप से आपको क्लियर हो चुका होगा परचेज क्रेडिट में कब यहाँ पे आता है। लेट अस चेक द आंसर वंस अगेन देन। 22nd, इंश्योरेंस कंपनी 3000 मिलने वाले उसके पास से, कैश अकाउंट डेबिट 200 मिले, जले हुए गुड्स मैंने बेचे 200 रुपये मुझे मिल गए। लॉस बाय फायर यहाँ पे वो 800 रुपये का, और टू परचेस इतने ही गुड्स मेरे पास यहाँ पे चले गए 4000 रुपये के। 23rd, to earn 20% profit on selling price, goods of the cost price rupees 5000 sold। 5000 पे मुझे 20% का सेलिंग प्राइस पे कमाना। 20% सेलिंग प्राइस मतलब 25% ऑन कॉस्ट प्राइस। 20% सेलिंग प्राइस मतलब 25% ऑन कॉस्ट प्राइस। तो 5000 का 25% दैट इज 1250। तो मैंने सेल किया 1250 का गुड्स। लेट्स चेक इट, 1250 इज देयर, सी 6250, मतलब 5000 प्लस 1250 6250, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ओके, दैट इज 6250। 20% कॉस्ट प्राइस पे, तो 25% सेलिंग प्राइस पर। ओके, 20% ऑन कॉस्ट प्राइस तो 25% ऑन सेलिंग प्राइस, ऐसा। ओके, उस कंसिडरेशन मुझे यहाँ पे करना होता है। देन नेक्स्ट वन, डेट नंबर 24, इंटरेस्ट फॉर 1 मंथ पेड ऑन लोन ऑफ श्रीमती। श्रीमती से के वास्ते लोन कितने का था, ये रहा, 10% लोन था 30,000 का। 30,000 पे 10% मतलब के 3000 रुपये। 3000 रुपये पूरे साल के, तो 6 महीने के 1500 रुपये। ओके, तो 3 महीने के 750 रुपये, तो 1 महीने के 250 रुपये का इंटरेस्ट मैंने पे किया। इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट हम बाद में चेक कर लेंगे, 2-3 साथ में। गुड डिस्ट्रॉयड इन रेलवे एक्सीडेंट रुपीज़ 2500, लॉस बाय रेलवे अकाउंट डेबिट टू परचेस, बिकॉज गुड्स गए मेरे टू परचेस। लिख देते हैं दोनों एंट्रीज सही है कि नहीं है। इंटरेस्ट ऑन लोन 250 का सही है, लॉस ड्यू टू एक्सीडेंट भी यहाँ पे सही दिया हुआ है, यहाँ पे 2500। ओके ना, नेक्स्ट 26, 50 shares of Adani Power Limited purchase at market price of 300, 50 into 300 is 15,000 and including 2% brokerage, 15,000 का 2% मतलब 300 रुपये का ब्रोकरेज पे किया। सब कुछ मिला के मैंने चेक पे किया। तो इन्वेस्टमेंट किया मैंने यहाँ पे 1 टाइप का इन्वेस्टमेंट इन अदानी पावर लिमिटेड अकाउंट डेबिट। ओके, ये मेरा इन्वेस्टमेंट, ठीक है, वो मैंने परचेस किया। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 15,300। लेट्स सी, 15,300। ओके, नेक्स्ट 27,
A computer of business of 2500 is sold to Karuna for rupees 1000. Karuna is the receiver. ठीक है, 1000 करुणा को मैंने बेचा 1000 में. ओके, लॉस कितने का किया मैंने? 1500 का लॉस किया. तो टू लॉस ऑन सेल ऑफ कंप्यूटर 1500 रुपये और टू कंप्यूटर अकाउंट 2500. कंप्यूटर गोज आउट टू कंप्यूटर अकाउंट 2500. वापस से करुणा के पास से मुझे पैसा मिलना बाकी. करुणा इज द रिसीवर 1000. लॉस ऑन सेल ऑफ कंप्यूटर 1500. टू कंप्यूटर का मेरे पास है 2500 रुपीज़ का. ओके, नंबर 28 साथ में देख लेंगे दो. इलेक्ट्रिक बिल ऑफ रुपीज़ 1800 एंड टेलीफोन बिल ऑफ रुपीज़ 700 ऑफ द फर्म पेड बाय चेक. इलेक्ट्रिक बिल अकाउंट डेबिट एक्सपेंस है डेबिट 1800 रुपये. टेलीफोन बिल अकाउंट डेबिट एक्सपेंस है 700 रुपये. टू बैंक अकाउंट 1500 2500 रुपये. चेक इट. करुणा 1000. लॉस ऑन सेल ऑफ कंप्यूटर 1500. टू कंप्यूटर 2500. इलेक्ट्रिक एक्सपेंस अकाउंट डेबिट 1800. टेलीफोन बिल 700. टू बैंक 2500 रुपये. ओके, देन नेक्स्ट. बैंक का क्रेडिट 200 फॉर इंटरेस्ट. बैंक ने क्रेडिट किया मतलब बैंक ने मुझे यहाँ पे इंटरेस्ट दिया है. सो बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक इंटरेस्ट. इंटरेस्ट मेरे इनकम है और मेरे बैंक को ही पैसा मिला था. बैंक इटसेल्फ इज द रिसीवर. तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक इंटरेस्ट अकाउंट 200. और बैंक ने डेबिट किया बैंक चार्जेस 100 रुपये का. तो बैंक चार्जेस मेरे लिए वन टाइप का एक्सपेंस है. तो बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 100 रुपीज़. देन ओके, गुड्स ऑफ 500 बाय स्टोलन एंड रुपीज़ 200 बाय रुइंड इन रेन. तो दोनों लॉस है मेरे लिए. तो लॉस बाय स्टोलन 500 रुपये. लॉस बाय रुइन 200 रुपये. टू परचेज 700 रुपये. ओके, एक दोनों चेक कर लेते एक बार ठीक से. बैंक टू बैंक इंटरेस्ट 200 रुपये. बैंक चार्जेस टू बैंक 100 रुपये. लॉस ड्यू टू थेफ्ट अकाउंट डेबिट 500 रुपये. टू परचेज दोनों इसने अलग अलग किया, हम साथ में भी कर सकते हैं. लॉस ड्यू टू थेफ्ट ऑफ गुड्स 500. लॉस ड्यू टू रेन ऑफ गुड्स या रुइंड ऑफ गुड्स जो भी है 200. टू परचेज 700. ऐसा भी हम कर सकते हैं. ओके, एंड द लास्ट वन, डेट नंबर 31 आई थिंक सो. या obtain change for rupees 1000 by currency note of rupees 100 was duplicate. Nothing was can be realized. 1000 रुपये का चेंज लिया मैंने, जिसके पास से भी लिया हो, बेसिकली बैंक से लिया होगा मैंने. आई कैन से लाइक दैट. ओके, उसमें से 100 रुपये की नोट मेरी यहाँ पे डुप्लीकेट निकली, मतलब 100 रुपये का मुझे यहाँ पे लॉस हुआ. तो आई कैन से लॉस ऑफ करेंसी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. ओके, बैंक से नहीं लिया मैंने, किसी और से एक्सचेंज किया होगा. तो 100 रुपये की नोट डुप्लीकेट निकली. तो लॉस ऑफ करेंसी अकाउंट डेबिट या सन्ड्री लॉस अकाउंट डेबिट यू कैन राइट डाउन. टू कैश अकाउंट 100 रुपीज़ 100 रुपीज़. टोटल कैसे करना है क्या करना है यू ऑलरेडी नो. ओके, आई वांट यू पीपल टू सॉल्व दिस इलस्ट्रेशंस मिनिमम 3 टाइम्स. 2 टाइम आप यहाँ वहाँ देखोगे, आप एक बार देखना पड़ेगा आपको कैसे क्या करना है. निराली कृति वाला वो स्टोर्स वाला जो था, ठीक है, तो सेटलमेंट वाले जो दिए हुए थे. तो ये ट्रांजेक्शन्स आपको 2-3 बार सॉल्व करने पड़ेंगे. अगर आप सीरियसली सॉल्व करते हो, समझ के ट्राई करते हो, तो आपके लिए ये जर्नल एंट्री वाला चैप्टर बहुत इजी है. आई डोंट थिंक सो. टिपिकल में कुछ और नया था, सेटलमेंट वाला था, एक वो रिटर्न गुड्स के टाइम पे प्रॉफिट निकालने वाला था, और इसके अलावा कुछ भी नहीं था जर्नल एंट्रीज के अंदर. तो आई वांट यू पीपल टू सॉल्व दिस इलस्ट्रेशन मैनी टाइम्स. मिनिमम 3 to 4 टाइम्स यू हैव टू सॉल्व इट. जब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं आता कि यू कैन डू इट विदाउट लुकिंग इनटू द आंसर्स, तो तब तक आई वांट यू पीपल टू सॉल्व अगेन एंड अगेन दिस पर्टिकुलर illustrations. Thanking you. Thanks for the cooperation and support. Stay home, stay safe and keep learning. Thanks all of you once again.